You have This already call is now being recorded. you have already read about microbes in the 11th or in the second chapter, bacteria and all, fungus. Now, in Kingdom Plant, you have read about fungus. Now, not all are pathogenic, We have learned that bacteria is responsible for most of our disease. Like in health and disease, we have studied tuberculosis, then typhoid, then leprosy, okay, pneumonia. These all are bacterial disease, but not all bacterias or fungus are pathogenic in nature. Some are useful for humans. Now, in this chapter, we will study that useful microbes function. Okay, now let us start. Now, beside macroscopic plants and animals, microbes are major component of biological system on this earth. Yes, microbes are important component of biological system. We have studied the diversity of living organisms in class 11, obviously. Now microbes are present everywhere. They are cosmopolitan. They are present in soil, they are present in water, air, inside our bodies, and अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे कि गाय और भैंस, रूमिनेंट्स बोलते हैं उन्हें। रूमिनेंट्स के बॉडी में भी मिथेनोजेंस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन के लिए मदद करते हैं ग्रासेस का। ओके, तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। दे आर इवन प्रेजेंट एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली exist, sites such as deep inside geysers, thermal vents, where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil, under the layer of snow, several meters thick, and in highly acidic environment. These are the tough climatic conditions, acidic nature, high density, high in the deep soils, now thick snow coverings, geysers या hot springs, वहाँ पे भी वो दिख जाते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, उसमें प्रोटोजोन्स आते हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, जो हमने 11th में एनिमल किंगडम में देखा था। बैक्टीरिया, फंगस and microscopic plant and animal. Now, viruses and viroids are also, and also prions are the proteinaceous infectious agent. Some of the microbes are shown in figure. We'll see that. Now, microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eyes. Such cultures are useful in studies on microorganisms. अब यहाँ पे कुछ microbes दिए हैं। पहला है रॉड शेप का बैक्टीरिया। ओके, सेकेंड है कॉकस बैक्टीरिया, क्योंकि उनका शेप देखो सर्कुलर है। ये आपने फर्स्ट 11th में पढ़ा होगा बेस ऑन शेप बैक्टीरिया के, कि वो रॉड शेप है, विब्रियो शेप है, कॉमा शेप है, और कॉकस शेप है। ओके, नाउ तो पहला है रॉड शेप, सेकंड है स्पेरिकल या राउंड शेप, थर्ड रॉड शेप है, और फ्लैजिला भी दिखाया गया है। यू कुड क्लियरली सी है, ये फ्लैजिला है, रॉड शेप बैक्टीरिया, कॉकस बैक्टीरिया एंड, ठीक है। नाउ हियर वायरस इज सीन, प्रॉन्स, पिंस, प्लेट, टेल, कॉलर, हेड। ओके, ए एंड बी वायरसेस, उसमें ए वाला जो है एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। एडिनो वायरस विच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एडिनो वायरस जो कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन में भी मदद करता है, विच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। थर्ड, रॉड शेप टोबैको मोसेक वायरस, मैग्निफाइड अबाउट 1 lakh times. Okay, now we'll see here some colonies. Now, how bacteria are grown? Bacteria को ऐसा कहीं भी grow नहीं कर सकते हाथों में. We grow in the lab in a there is petri dish जिसके अंदर हम अगार मीडियम, ब्लड अगार मीडियम, बेसिकली अगार को यूज करके एक पेट्री डिश के अंदर
अलगी को अलगी को यूज करते हैं ऐसा मीडिया, और उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो ऐसा स्ट्रक्चर, ये पूरा साइड बाय साइड दिस इज अगार, एंड इसके ऊपर ये जो है ये सब बैक्टीरिया की कॉलोनीज है। ओके, तो पेट्री डिश पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, वेयरस फंगल कॉलोनी को भी पेट्री डिश में ग्रो किया है। और देखो फंगल का हमने जब रिंग वर्म इन्फेक्शंस भी हेल्थ एंड डिसीज में देखा था, तो वो सर्कुलर रिंग के फॉर्म में था। तो फंगस की कॉलोनी हमेशा ऐसे स्मॉल स्मॉल रिंग्स में होती है, जैसे ये एक रिंग है, ये है, ये है। ओके, मूविंग फर्दर, in chapter 7 you have read the microbes cause a large number of disease in human being, because last chapter हमने health and disease पढ़ा था। Now they also cause disease in animals and plants, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in a diverse way. Some of the most important contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, सबसे पहला यूज हम उनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखेंगे। इससे नीट में कोई स्ट्रेस वाले क्वेश्चंस नहीं आता, डायरेक्टली आएगा नेम वाइज, और बोर्ड्स में भी। तो इस चैप्टर से सिर्फ जो चीज़ें मैं बोलूँ स्टार मार्क वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप स्किप भी कर सकते हो। Now let us start. You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example of production is curd. सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल दिया है माइक्रोब्स के यूज का, वो है योगर्ट या कर्ड। और योगर्ट जो है वो हम लैक्टोबैसिलस से ही बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस इज द सेम बैक्टीरिया विच रिसाइड्स इन आवर स्टमक और इन द वजाइनल ट्रैक्ट। तो ये बैक्टीरिया कॉमनली यूज होता है योगर्ट्स के लिए। ओके, नाउ कॉमनली एग्जांपल इज कर्ड फ्रॉम मिल्क। Microorganisms such as lactobacillus and others commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it to curd. ओके, हम एक कोगुलम इनोकुलम डालते हैं। मम्मी दही कैसे बनाती हैं, आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, तो वो मिल्क के अंदर एक छोटू सा ड्रॉप योगर्ट का डालती हैं, दैट इज इनोकुलम। वो हम बैक्टीरिया की एक कॉलोनी डालते हैं उस छोटे से ड्रॉप में, ताकि बैक्टीरिया फिर धीरे धीरे डिवाइड करके पूरी रात में उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। ओके, now milk and convert it to curd. During the growth, lactic acid bacteria produce acids that coagulates and partially digest the milk proteins. A small amount of curd added टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम इनोकुलम यूज करते हैं फ्रेश, और स्टार्टर विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12. In our stomach too, lactic acid bacteria plays very beneficial role in checking the disease causing microbes. तो आप लोगों को पता होगा जब डायरिया होता है तो डॉक्टर कई बार प्रोबायोटिक्स देता है ना, प्रोबायोटिक्स में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो अगर कोई डायरिया का पेश मतलब किसी को अनइवन कॉज की वजह से डायरिया हुआ है, तो ही और शी कैन ईट फ्रेश योगर्ट 2 to 3 स्पून्स डेली इन द मॉर्निंग। उससे बैक्टीरियल फ्लोरा बढ़ता है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब डायरिया वगैरह में, तो वहां पे हमारे नेचुरल बैक्टीरिया की डेथ होने के चांस होते हैं। ओके, नाउ टू स्टार्ट कंटेन या इनोकुलम डालते हैं। और लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग disease causing microbes. Now second, the duff, which is used for making food such as dosa and idlis, are also fermented by bacteria. आपको पता है डोसास और इडलीस के लिए हम रात भर एक फर्मेंटेशन में उस पेस्ट को रखते हैं, दैट इज डब, दैट इज कॉल्ड एज डब। Now dough which is used for making food such as dosa and idlis is also fermented by bacteria. The puff of appearance of dove is due to production of CO2 gas. उसमें जो पफ या इडली के अंदर वो जो पोर्स दिखते हैं वो CO2 गैस के रिमूवल से होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO2 गैस। नाउ
Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. सिमिलरली जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है वो बेकर्स ईस्ट होता है और उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेकर्स ईस्ट किसको बोलते हैं, ये नीट का भी क्वेश्चन, ऐसे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, इससे बेकर्स ईस्ट, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ओके, बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes. Toddy, a traditional drink of some parts of southern India, is made by fermenting sap from the palms. Microbes are also used in to ferment fish, soybean, and bamboo shoots to make foods. Cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. ओके, माइक्रो टॉडी जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, और वो फर्मेंटेशन ऑफ पाम ट्रीज से बनते हैं। फर्मेंटिंग सैप ऑफ द palms, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टॉडी साउथ इंडियन डिश है और पाम्स के सैप से बनता है। नो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड bamboo shoots to make foods. Now, cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. आपको पता है चीज आज के डेट में हम लोग हर जो भी चीज, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड या जो भी चीजें खाते हैं उसमें हम चीज डालना पसंद करते हैं। तो ये भी एक ओल्डेस्ट माइक्रोब से यूज होने वाला प्रोडक्ट है। Now, different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor, and taste. The specificity coming from the microbes used, वो सारा टेस्ट और वो स्पेसिफिसिटी ऑफ माइक्रोब्स यूज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। जैसे स्विस चीज है जो स्विट्जरलैंड में पहली बार बना था, स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कौन से बैक्टीरिया से निकलता है CO2? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो स्विस चीज का एजेंट कौन है? सबका एजेंट याद रखना पड़ेगा। जैसे ऊपर बेकर सीस्ट का सैक्रोमाइसिस, वैसे ही स्विस चीज का प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। रोकफुट चीज, roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them which gives them स्पेशल फ्लेवर। रॉकफूड चीज फंगी से ग्रो, फंगी को माइक्रोब्स की तरह यूज करके बनाया जाता है। तो सिर्फ आपको इसमें नाम याद करना पड़ेगा, फंगल माइक्रोब्स यूज होता है। तो जस्ट क्विक रिकैप, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बेकर्स ईस्ट, टॉडी साउथ इंडियन डिश है जो सैप ऑफ द पाम से है, स्विस चीज प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, एंड रॉकफोर्ड चीज जो फंगल के माइक्रोब से ग्रो किया जाता है। नाउ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये तो थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड में हमने योगर्ट्स बनाए, बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स बनाए, चीज बनाए। नाउ विल मूव इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओके, now in industrial products, even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some example productions on industrial scale, requires growing microbes in very large vessels called fermenters. Okay, हम लोग फर्मेंटर्स जो हैं वो लार्ज वेसल्स होते हैं प्रोडक्शन करवाने के लिए, वो हम बायोटेक में पढ़ेंगे, आगे आएगा, डोंट वरी। देखो ऐसे कुछ दिखते हैं फर्मेंटर्स। नाउ फर्मेंटेड बेवरेजेस, microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum. ओके, ये हम लोग माइक्रोब्स को यूज करके, स्पेशली ईस्ट को, टाइम से हम बिवरेजेस बना रहे हैं लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हमने पीछे बेकर्स ईस्ट भी बोला था, आर यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। ओके, ब्रेड बनाते इसलिए बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट बोलते ही हैं। अभी लास्ट पेज पे भी हमने पढ़ा। इस यूज फॉर फर्मेंटिंग malted cereals and fruit juice to produce ethanol.
ओके, ईस्ट के थ्रू हम लोग फर्मेंटेड मेल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. Now, depending on this type of raw materials used for fermentation and the type of processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained. Now, distillation is heating on a particular temperature. तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स डिस्टिलेशन से मिलते हैं, कुछ कुछ नॉन डिस्टिलेशन से मिलते हैं. जैसे वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन. ये नीट का क्वेश्चन है. वाइन और बियर जो है वो लोग विदाउट डिस्टिलेशन से, मतलब विदाउट हीट वीट किए मिल जाते हैं. उनमें सिर्फ क्या होता है, ईस्ट डाल दो एंड माल्टेड सीरियल्स वगैरह इथेनॉल बना देते हैं. नाउ वेयर एस विस्की ब्रांडी एंड रम, BWR, BRW, नाउ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्टिलेशन. तो उसके लिए कोड याद रखो कि वाइन एंड बियर और विदाउट डिस्टिलेशन पर ब्रांडी BR, रम, विस्की BRWD, ये लोग किससे मिलते हैं, डिस्टिलेशन से. whereas wine and beer is non distillation. Okay, one second. Okay, now antibiotics, ये आपको याद रखना पड़ेगा. वाइन और बियर, रम एंड विस्की, सॉरी, ब्रांडी, रम एंड विस्की आर प्रोड्यूस with distillation, and whereas wine and beer is produced without distillation. Okay, now एंटीबायोटिक्स हम सबको पता है, जब भी हम इल हो जाते हैं, जब हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी वीक पड़ जाती है, तो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं टू गेट one ourselves cure. Okay, now antibiotics produced by the microbes are regarded as one of the most significant discoveries in the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society. Now, anti is a Greek word meaning against, and bio means life. Together, they mean against life in the context of disease causing agent. Okay, antibiotics means against life. In context to of disease causing organisms, उसको उसके अगेंस्ट रहता है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. नाउ वेयर एज विथ रेफरेंस टू ह्यूमन दे आर कॉल्ड प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट. ओके, तो एंटी वो किसके लिए है, जो माइक्रोब कॉजिंग है उनको मारने के लिए. वरना ह्यूमन बींग्स के लिए वो प्रो लाइफ है, मतलब वो लाइफ देता है. नाउ एंटीबायोटिक्स आर केमिकल substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. Okay, antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin. ये हम सबको पता है, बहुत commonly use होता है penicillin. Do you know that penicillin was first antibiotic to be discovered, and it was a chance discovery? How Alexander Fleming, ये आपको याद रखना पड़ेगा साइंटिस्ट का नाम, Alexander Fleming, while working on Staphylococci, ये भी नीट का क्वेश्चन है, किसके ऊपर वर्क कर रहा था. He was working on Staphylococci bacteria. Once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. ओके, उन्होंने देखा कि वो वर्क कर रहे थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे वंस, और वहां पे उन्होंने मोल्ड को ग्रो होते देखा, जिस जो प्लेट्स उनकी थी पेट्री डिश वो क्लीन नहीं थी, और वहां पे स्टेफिलोकोकस कुड नॉट ग्रो. ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम इट पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड. पेनिसिलिन नोटाटम, तो पेनिसिलिन नोटाटम एक फंगल था
जो मोल्ड था, और उसने केमिकल निकाला था जिसके कारण स्टेफिलोकोका ग्रो नहीं कर पाया. हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन effective antibiotic was established much later by Ernest Chen. किसने ढूंढा था? अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे. ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फुल उसका एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक का जो मेन इफेक्ट है वो ढूंढा था हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन. ओके. और किसने फर्स्ट टाइम ढूंढा था उसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. किस पे वर्क कर रहा था? एक मोल्ड पे. मोल्ड का नाम क्या था? पेनिसिलिन नोटाटम. और उस पे कौन सी बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो पाए थे? स्टेफिलोकोका. ऐसे नीट का क्वेश्चन आएगा. ओके. स्टेफिलोकोका ग्रो नहीं हो पाया था. एंड पेनिसिलिन नोटाटम वाज द मोल्ड जिसने ग्रो नहीं होने दिया था. और उसका फुल यूज ऑनस्टैन एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने दिया था. The antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chen, and Florey were awarded Nobel Prize in 1945 for this discovery. Okay. Now, after penicillin, other antibiotics were also purified each other from microbes. Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, kaling khasi, diphtheria, galgotu, and leprosy, kush rog, which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. Okay, तो इसमें जो डिसीज दिए हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा. whooping cough, काली खांसी, diphtheria, galgotu, एंड लेप्रेसी, कुष्ठ रोग. ये तीनों डिसीज के लिए इसके सेकंड नेम जो दिए हैं ब्रैकेट में उसको मैच द पेयर्स आते हैं नीट में, विच आर यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब. ओके. नाउ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल और मेडिसिन. अब हम पढ़ेंगे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. Now, microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols, and enzymes. Example of acid producers are Aspergillus niger, a fungus of citric acid. ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू. एस्परजिलस नाइजर जो कि एक फंगस है वो साइट्रिक एसिड बनाने के लिए काम आता है. ओके. एजिटोबैक्टर एसिटी, बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड. ओके. एजेटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड बनाने में अगेन काम आता है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है बैक्टीरिया ऑफ ब्यूट्रिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरिया ऑफ लैक्टिक एसिड. तो कुछ ना ये बैक्टीरिया के थ्रू हम बहुत सारे एसिड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे नाइजर से साइट्रिक एसिड, एजेटोबैक्टर से एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से ब्यूट्रिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड. ओके. ईस्ट, सैक्रोफाइसिस सेरिवेसी, जब जो अब तक हम दो बार पढ़ चुके हैं, एक बेकर सीस्ट एंड एक क्रीवर सीस्ट या ब्रीवर सीस्ट, सॉरी. नो, ईस्ट सैक्रोफाइसिस सेरिवेसिस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ये हमें पता ही है. माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. लाइपेसेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ये याद रखना है. लाइपेसेस जो है एंजाइम्स हैं are used in detergent formulation and are help in removing oil stains from the laundry. You may have noticed the bottle fruit juices bought from market are clearer as compared to those made at home. जब हम हाउस में बनाते हैं उसमें काफी पार्टिकल्स फ्रूट के रह जाते हैं एज कम्पेयर टू जो हम ड्रिंक्स बाहर से खरीदते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो एकदम क्लीन दिखते हैं. नाउ why is those differences? This is because the bottle juices are clarified by use of pectinase and protease. हम लार्ज स्केल में से कोको कोला, स्प्राइट या माजा हो गया, उन सब में पेक्टिनेस और प्रोटीएस डाले जाते हैं ताकि उसमें कोई भी फ्रूट का पल्प ना रह जाए. ओके. तो पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस यूज करते हैं. नाउ स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस and modified by genetic engineering is used as a clot buster
for removing clots from blood vessels of patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. जिसको भी हार्ट में ब्लॉकेज होता है हम उसको कॉमनली एक टैबलेट देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस का. स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर भी बोला जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लॉट बस्टर. किसको? स्ट्रेप्टोकाइनेस को they are also called as clot buster. Now what they do कि हमें पता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सबसे पहले ऐसा वेसल्स के ल्यूमेन शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो इससे क्या हो जाता है? ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है. अब ये जो क्लॉट है इसको यहाँ से डिसॉल्व करने का काम कौन करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस. तो ये कहाँ से मिलता है? एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई करते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक का पार्ट है जो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ओके तो बस तुम्हें यहाँ पे याद रखना स्ट्रेप्टोकाइनेस हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचाता है. अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन है. बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज होता है. अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन है दैट इज यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. देखो साइक्लोस्पोरिन है और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है, ये याद इंपॉर्टेंट है. साइक्लोस्पोरिन कहाँ से बनाया जाता है? एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ओके ये किस लिए यूज करते हैं? जब हम किसी और के ऑर्गन्स को या कोई टिश्यू को डोनेट कर रहे हैं तो सामने वाले की बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ MHC, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी. नाउ MHC परप्यूरिया एक और ईस्ट का स्पीशीज है. मोनास्कस परप्यूरिया हैव बीन कमर्शियलाइज्ड फॉर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. ओके जो भी लोग ओबेस होते हैं, ओबेसिटी कम करने के लिए स्टैटिन्स दिया जाता है उन्हें, और वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में काफी काम आता है. इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करता है एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ओके तो ये कुछ यूज है. एक बार इसके नाम याद कर लो. एस्परजिलस नाइजर साइट्रिक एसिड, एजेटोबैक्टर एसिटिक अगेन एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूट्रिक एसिड जो बटर वगैरह में यूज होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से हम रिमूव करते हैं? लैक्टोबैसिलस. ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस से हम इथेनॉल बनाते हैं. लाइपेसिस यूज करते हैं हम डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशंस में, और लॉन्ड्री वॉश के लिए एंड फ्रूट जूसेस को प्यूरिफाई करने के लिए हम पेक्टिन और प्रोटीएसेस डालते हैं. वेयर एज स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई और कॉमनली कॉल्ड एज क्लॉट ब्लस्टर. दे आर यूज फॉर डिसॉल्विंग द क्लॉट्स जो हार्ट को फंक्शन करने से रोकते हैं. ओके एंड वेयर एज साइक्लोस्पोरिन जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट है और वो एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है. स्टैटिन्स जो है वो मोनास्कस परप्यूरिया से है और वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है. ओके तो खासकर ये वाला पैराग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेशली हाईली इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्टैटिन्स मोनास्कस परप्यूरा एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है स्टैटिन्स. ओके
Now we'll move further. Microbes in sewage treatment plant आज जितना होता है अपन करेंगे। वो आप लोग को पता है, जैसे बहुत ही जल्दी प्रयागराज के अंदर कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है, तो वहां पे रिवर या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट ओनली। इंडिया की हर सिटीज के रिवर्स का हाल वैसा ही है, दे आर highly polluted, and governments are trying to build STP sewage treatment plants to avoid to reduce the production level, whereas we how far we are still very unsuccessful. So here we'll study how sewage treatment plants are basically worked, how they act, and all. Okay, microbes in sewage treatment. We know that large quantities of wastewaters are generated every day in the cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater are also called as sewage. Okay, हमें पता है लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट हर शहर जनरेट करता है। मेजर components of this wastewater is human excreta. The municipal wastewater is also called as sewage. तो sewage की definition यहाँ दी है, municipal wastewater is called as sewage. It contains a large amount of organic matter and microbes. उसके अंदर assertion and reason आता है आपको कि सीवेज हैज इनऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। तो आपको लगता है वो सही है, नहीं, सीवेज के अंदर हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड माइक्रोब्स, नॉट एन इनऑर्गेनिक। नाउ मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। However, ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. You understand why? Before disposal, hence sewage is treated in STPs or sewage treatment plants to make it less polluting. Treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes naturally present in the सीवेज। हेट्रोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट टाइप्स के नेचर के बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो सीवेज में ऑलरेडी होते हैं, हम उसको भी यूज करके क्लीन करने में यूज करते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नो, आगे का जो भी है ये हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज यहाँ से हम बीच में हम अटकेंगे तो वो आपको आगे का नहीं समझेगा। दिस इज होनली अ वन प्रोसेस। बट एक व्यू है यहाँ पे, देखो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के, ऐसे सर्कुलर प्राइमरी टैंक्स, सेकेंडरी टैंक्स। ओके, तो ये कुछ है। कॉमनली ये गंगा, यमुना एक्शन प्लान, इन सब में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज होता है, और आजकल ऑलमोस्ट इंडिया के हर बड़े शहर में एसटीपीस हैं। आप अगर अपने नज़दीकी एसटीपी प्लांट्स पे विजिट करना चाहो तो एक बार करके आओ। इट्स हाईली इंफॉर्मेटिव सेशंस, आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझाओ। प्लीज माइक्रोब्स के नाम याद रखो, मैच द पेयर नीट में बहुत आते हैं। आप इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको कॉमनली मिलेगा। नाउ फर्दर, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे वूपिंग कफ, सबके दूसरे नाम और ड्रग्स, वो आपको एक स्पेशली फ्लो चार्ट बना लो या एक जगह पे लिखो और रोज उसको स्टिक करके पढ़ो। साइंटिस्ट के नाम मर्चेंट, हार्वर्ड, फ्लेरी, देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन सब का आपको नाम पता होना चाहिए। पेनिसिलिन नोटाटम किस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दिया था? स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया। ये फर्मेंटर्स हैं, और जो भी हमने उसको हाउस होल्ड यूज देखे। ओके, सो लेट्स end it here. Tomorrow we'll study sewage treatment plants and मिथेनोजेंस और गोबर गैस प्लांट। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के चांस हो सकते हैं, तो विल स्टडी इट टुमारो। ओके, थैंक यू।